شکر صاحب جگہ دے دو آصم بھائی فریم سیٹا رکھا میرا بھی حال ہے بٹ رکھو رکھو مائک یار میرے جیو نے لگ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ میر حمزہ اپنے آڈیو وغیرہ چیک کر لو بھائی ذرا چیک کیجیے ہلو ہلو مائی چیک مائی چیک مائی چیک مائی چیک مائی چیک رؤوف آپ بھی پیچھے پیچھے سب کے پورے لوگوں آپ لوگ سوال پوچھیں. میڈم یہ بتائیے گا کہ 2 روز قبل پنجاب حکومت نے لسٹ جاری کی ہے 50 لوگوں کی اور اس میں تمام جو ہے نون لیگ کی قیادت کے لوگوں کے نام ہیں. انہوں نے کہا یہ سارے قبضہ مافیا ہیں. تو نون لیگ کی قیادت کہیں نظر نہیں ہے. کوڑا کہہ رہے ہیں کوڑا. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ جی. قبضہ مافیا کی اگر لسٹ جو جاری ہوئی ہے تو سب سے بڑا قبضہ مافیا تو یہ جعلی حکومت خود ہے اور اس کی ساری ATMs ہیں اور وہ سب ہیں جن کو انہوں نے تاریخی چوریوں اور ڈاکوں کے باوجود بہت بڑے بڑے NROs دیے ہیں. تو اگر صحیح معنوں میں مافیاز کا مطلب آپ نے سمجھنا ہے, قبضہ مافیا کا آپ نے سمجھنا ہے جو 2018 کے الیکشن میں عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈال کر پرائم منسٹر ہاؤس پہ جا کے قبضہ کر کے بیٹھ گئے, پاکستان قبضہ کر کے بیٹھ گئے, ان سے بڑا قبضہ مافیا کون ہے؟ اور اس دن کے بعد سے پاکستان کی ایسی ڈاؤن فال شروع ہوئی کہ ہر چاہے وہ آٹا ہو, چینی ہو, LNG ہو, چاہے وہ PIA ہو, کچھ بھی ہو, پاکستان کی گورننس ہو, پاکستان ہر جگہ پر ان کی جو گورننس ہے اس کے بڑے بڑے فیلیئرز ان کا منہ چڑھا رہے ہیں. اور اس کے بعد جو کرپشن کے سکینڈل سامنے آ رہے ہیں, میرا نہیں خیال کہ تاریخ میں کبھی بھی اتنے بڑے بڑے سکینڈلز اور قبضہ مافیا کے اتنی بڑی بڑی کہانیاں منظر عام پہ آئی ہیں. تو ابھی آپ میڈیا کو دباؤ میں لے آئیں, ابھی آپ اپنی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, آپ کے احتساب کے ادارے ہیں, آپ ان کو آپ دباؤ میں لے آئیں. ایک دن تو آئے گا جب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا اور وقت قریب ہے انشاءاللہ. میڈم یہ بتائیں کہ حکومتی لوگ کہتے ہیں کہ جیسے PDM پہلے متحرک تھی, ایک سیکنڈ میں ذرا PDM کی بات بعد میں کروں گی, پہلے میں یہ کر لوں کہ یہ جو کھوکھر برادران میرے دائیں بائیں کھڑے ہیں, میں آج میاں صاحب کے کہنے پر ان سے اظہار یکجہتی کے لیے آئی ہوں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی زیادتی ان کے ساتھ اس دن ہوئی. ان کی بہنوں کے بیٹیوں کے گھر گرائے گئے اور آدھی رات کو دھاوا بولا انہوں نے, اور چادر چار دیواری کا جو تقدس تھا اس کو پامال کیا. کورٹ میں ان کا سٹے تھا, اس سٹے کے باوجود کون ہے وہ جس نے ان
इंतकाम में अंधा होकर वो कोर्ट के ऑर्डर्स की धज्जियां उड़ाईं। मैं कोर्ट से भी ये दरख्वास्त करती हूँ कि अपनी इस तज़हीक का नोटिस लें, और ये भी ऑब्वियसली कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट का फैसला आ गया, इनके हक में आ गया। तो मुझे ये भी पता चला है कि ये जो शख्स है जिसका नाम इमरान खान है, वो पर्सनली बैठ के इस सारे ऑपरेशन को मॉनिटर करता रहा है, और पहले खोखर बरादरान को पीएमएलएन के बहुत सारे जो मेंबरान कौमी और सूबाई असेंबलीज हैं और जो हमारे सेनेटर्स हैं, बहुत सारे मेंबर्स की तरह इनको भी पहले दबाव में लाने की कोशिश की गई। इनको भी हर जलसा, हर जुलूस के मौका पर इनको ये कहा गया कि आप क़यादत के बयानिए से इख्तलाफ कर लें, आप पार्टी को छोड़ दें, आप क़यादत को छोड़ दें, आप एक्टिविटीज़ में हिस्सा ना लें, आप ज़ेर ज़मीन चले जाएं। बहुत धमकाते भी रहे, लेकिन इन्होंने जब पार्टी क़यादत और नवाज शरीफ का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया तो फिर ये इंतकामाना कार्रवाई इनके खिलाफ की गई। मैं इसकी सख्ती से मज़म्मत करती हूँ, और मैं ये समझती हूँ कि कुफर का निज़ाम, जैसे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। तो जो स्टैंडर्ड्स ये खुद आज सेट कर रहे हैं, हमने तो बर्दाश्त कर लिए। हमारी अल्लाह के फजल करम से 4 साल की जबर के बावजूद, जुल्म के बावजूद, इंतकाम के बावजूद मुस्लिम लीग नून स्टैंड्स यूनाइटेड। अल्लाह ताला के फजल करम से नवाज शरीफ के बयानिए पर उन्होंने लब्बैक कहा और अपनी वफादारियां तब्दील करने से इनकार कर दिया। मुस्लिम लीग की हिस्ट्री के अंदर शायद ये पहली मर्तबा है कि मुस्लिम लीग ने जुल्म के आगे, जबर के आगे, हुकूमत वक्त के आगे झुकने से इनकार कर दिया, टूटने से इनकार कर दिया। तो ये तो एक तारीखी नाकामी है जो इमरान खान को और उसके सारे हवारियों को फेस करनी पड़ी। इंशाअल्लाह ताला आगे भी नाकाम होंगे। लेकिन मैं एक और बात बता दूं कि मुस्लिम लीग नून एक वो जमात है जिसकी जड़ें हैं आवाम के अंदर। उसमें ये अफजल खोखर साहब और सैफ खोखर साहब जैसे वफादार मियाँ साहब के बाएतमाद साथी भी हैं, और मुस्लिम लीग नून की पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत मजबूत जड़ें हैं माशाल्लाह। लेकिन तहरीक इंसाफ का ऐसा कुछ नहीं है, और वो एक वन मैन शो पार्टी है, और जब वो इंसान कमज़ोर होगा, ख़त्म होगा, जो कि हमें नज़र आ रहा है, तो ये पार्टी टूट के बिखर जाएगी। मुस्लिम लीग नून पे तवज्जो करने की बजाय ज़रा अपनी तवज्जो आप काइंडली अपनी जमात की तरफ करें। और ये जो 15-16 लोगों का कल ग्रुप है जिसने अपनी ही पार्टी के ऊपर तहरीके, वो जो एक अदम एतमाद का जो उन्होंने इजहार किया, आप अपनी पार्टी पे तवज्जो दें, क्योंकि आगे आगे जब इलेक्शन आ रहा है और लोगों को नज़र आ रहा है कि इलेक्शन, जनरल इलेक्शन आने वाला है, तो उसके अंदर कोई भी तहरीक इंसाफ की टिकट लेने को तैयार नहीं होगा। तभी आप ये देखेंगे कि ना ये कोई जलसा कर सकते हैं, ना ये अवाम के अंदर जा सकते हैं। जब भी ये इनके वज़रा और ये अवाम के अंदर जाते हैं, इनको बहुत बड़े रिएक्शन का सामना करना पड़ता है। और आगे आगे जो हालात इनके लिए आ रहे हैं, उसके लिए इनको अपनी पार्टी पे तवज्जो देनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून को छोड़ दें, उसमें ये तारीखी नाकामी और शर्मिंदगी का सामना कर चुके हैं। अल्लाह ताला ने का बड़ा फजल है, मुस्लिम लीग नून आज भी पूरी आबोताब के साथ खड़ी है। इन्होंने पूरी 4 साल से हथकंडे आजमा लिए, कुछ कामयाब नहीं हुआ। इंशाअल्लाह ताला अब इनकी अपनी बारी है। मैडम, ये पीडीएम वाली बातें हैं जो अदालत में जा रहे हैं, क्या ये जाती हैसियत में अदालत में जाएंगे या मुस्लिम लीग नून इस केस को टेकअप कर रही है? नहीं, मुस्लिम लीग नून तो सियासी तौर पे इस केस को टेकअप करती है। जो अग्रीव्ड पार्टी है, जो अफेक्टेड है, ऑब्वियसली कोर्ट तो वही जाएंगे। मैडम, ये जो लेकिन हमारी पूरी मॉरल सपोर्ट, सियासी सपोर्ट, जमात की सपोर्ट, लीडरशिप की सपोर्ट इनके साथ है। मैडम, और मेरे किसी भी रुकन पर जहां जुल्म होगा, जहां ज्यादती होगी, मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं उनके साथ खड़ी होंगी। मैडम, क्योंकि पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे बहुत बड़े जलसे हुए और हुकूमत अब कहती है कि पीडीएम जो है वो आपस में इनके अब झगड़े हो गए हैं, ये हुकूमत की खाली ख्याली है। और दूसरी बात ये कि 2021 आप समझते हैं कि ये इलेक्शन ईयर है? हुकूमत की खाम ख्याली नहीं है, ये हुकूमत की ख्वाहिश है जो दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। जाहिर है पीडीएम एक 10 जमातों के ऊपर मुश्तमिल एक अलायंस है, जिसमें हर जमात का अपना मंशूर है, हर जमात का अपनी सोच है, हर जमात का अपना एजेंडा है। लेकिन मैं समझती हूँ कि मिसाली इस वक्त जो है वो कोऑर्डिनेशन है हर
को बैठ के हम डिस्कस करते हैं और कोई इल फीलिंग नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है। अगर सोच का, राय का इख्तलाफ होता है तो वो हम बड़े अच्छे तरीके से बैठ के इमाम व तफहीम के साथ डिस्कस करते हैं, हल करते हैं। और जहाँ तक हुकूमत का सवाल है तो हुकूमत की वो क्या कहते हैं ना कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ये उनकी ख्वाहिश तो हो सकती है कि पीडीएम में कोई ट्रैक नज़र आ जाए या पीडीएम के अंदर कोई इनको थोड़ा बहुत भी झोल नज़र आ जाए, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हुकूमत की ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। अच्छा मैडम ये बताएगा कि जस्टिस सईद बरादरान पर बुरा वक्त आता है, राना सनाउल्लाह पंजाब की सतह पर आते हैं, आप बात करेंगे, रेस्क्यू करती हैं, फिर बात जो है आला मुकाम तक पहुंच जाती है। देखने में ये है कि लाहौर की सतह पर कोई ऐसी मूवमेंट जो है इनके हक में नजर नहीं आती। ये लोग जो आपके साथ खाना पसंद खड़े हैं, फिर इनके हवाले ही लाहौर कर दें ताकि किसी और को रेस्क्यू करने ये तो पहुंच जाए, अगर कोई इनको रेस्क्यू करने नहीं आ रहा। अच्छी तजवीज़ दी आपने, लीडरशिप तक पहुंचाती हूँ। अच्छा मैडम ये बताएगा कि एक कमेटी बनाई गई है ब्रॉडशीट के हवाले से जिसमें जस्टिस रिटायर्ड ब्रॉडशीट नहीं, उसका नाम है फ्रॉडशीट। जो भी है अजमत सईद साहब को बनाया गया, क्या आप समझते हैं कि कोई नई एक जाल बनाया जा रहा है मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ? नहीं, ये जाल नया नहीं है, जाल बहुत पुराना है। ये जाल के अंदर बहुत बड़े बड़े सुराख हो गए, जिसको फंसाने की कोशिश करते हैं, ये जाल उलट के उन्हीं के ऊपर आते हैं। तो जस्टिस अहमद सईद साहब जो है उनको कौन नहीं जानता कि कितनी उन्होंने नेक नामी कमाई थी जब वो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज थे, और उन्होंने जिस तरह से पर्सनली ज़ाती तौर पे असरअंदाज होकर उन्होंने JIT बनवाई। उन्होंने व्हाट्सएप कॉल्स की, जिस JIT को बदनाम ज़माना JIT को आज तक व्हाट्सएप ज़दा JIT के नाम से याद किया जाता है, उसके बानियों में उनका नाम शामिल था। और उन्होंने पर्सनली व्हाट्सएप कॉल्स की और उन्होंने डिफरेंट जो महकमे थे जहां से उन्होंने अपने मेंबर्स लेने थे JIT के, तो उन्होंने अपनी ज़ाती नापसंद वो लोग जो उनके ज़ेरे असर थे, जिनके साथ वो काम कर चुके हुए थे, जिनको वो समझते थे कि वो उनके मनपसंद फैसले देंगे, उनके इन्फ्लुएंस में हैं, उन्होंने ज़ाती तौर पे इदारों को व्हाट्सएप कॉल्स करके उनके नाम JIT शामिल करवाए। तो वो जो एक मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश थी, एक मुंतखब वज़ीर आज़म के खिलाफ साजिश थी, उसमें वो करता था। और उस वक्त वो जब ये चीज़ ओरिजिनेट की, ये ब्रॉडशीट वाली, उस वक्त वो नैब के ऑफिसर थे, नैब के ओहदे पे फाइज थे, वो उसके लाने वालों में से थे। तो जो शख्स इस सब चीज़ का जिम्मेदार हो, जो पाकिस्तान के अरबों रुपए जो हैं वो एक फ्रॉड की नज़र कर गए। और क्या नाम है जी कल उनका जिसका स्टेटमेंट आया था, नहीं, फारूक आदम साहब। कल फारूक आदम साहब ने खुद ही कह दिया कि हमारी जो सारी वो $1 अरब का जो एक मुज़िका खेज इल्ज़ाम नवाज शरीफ पर लगा था, बाकी सारे इल्ज़ामात की तरह, उसकी कलई उन्होंने खुद ही खोल दी। उन्होंने कहा जी वो स्पेकुलेशंस पे बेस्ड था। तो अब आप खुद ही सोच लें कि इन्होंने ये नवाज शरीफ को बदनाम करने के लिए एक नया स्कैंडल खोलने की कोशिश की थी, लेकिन उल्टा वो इनके सर पे पड़ गया। अभी तो इन्होंने बहुत सारे सवालात के जवाब देने हैं कि किस तरह ये पैसा अप्रूवल के बगैर, अवाम के इल्म में लाए बगैर रातों रात ये ट्रांसफर किया गया यूके में पाकिस्तानी हाई कमीशन के अंदर के अकाउंट में। और लंदन कोर्ट का फैसला से पहले इसको ट्रांसफर किया गया। पाकिस्तान के अवाम की जो खून पसीने की कमाई है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, और इसलिए ट्रांसफर किया गया कि आओ और इसको जब्त कर लो, सिर्फ इसलिए कि आप ये नहीं बताना चाहते थे लोगों को कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो JIT रिपोर्ट जिसके ऊपर ये बेस था वो गलत थी, और अगर ये हकायक सामने आ जाते तो नवाज शरीफ एग्जॉनरेट हो जाता। उसको एग्जॉनरेशन से बचाने के लिए आप और अपने आप को, अपने इल्जामात को झूठा साबित होने से बचाने के लिए, अपने आप को शर्मिंदगी से बचाने के लिए आपने इतना बड़ी रकम पाकिस्तान के अवाम की आपने बर्बाद कर दी। और फिर ना सिर्फ ये कि बर्बाद कर दी,
آپ کے حکومت کے بڑے بڑے افسران وہاں پہ ریسٹورانٹس میں بیٹھ کر موسوی صاحب سے کمیشنز مانگ رہے تھے. آپ نے وہ تب بھی نہیں بخشا پاکستانی عوام کے پیسے کو. تو ان چیزوں کا حساب تو آپ کو دینا پڑے گا. اور کبھی ایسا ہوا ہے کہ کبھی کسی ہائی کمیشن کے اس طرح سے اکاؤنٹس جو ہیں وہ سیز ہو جائیں؟ یہ تو پاکستان میں جس طرح یہ ملیشیا میں پہلی مرتبہ جو وہ لیز نہ جمع ہونے کی وجہ سے پاکستانی طیارے کو قبضے میں لے لیا گیا, وہاں پہ 166 جو ہمارے پاکستانی بہن بھائی جو پیسنجرز تھے ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا. اور جس طرح اب یونائٹڈ نیشنز نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ پاکستانی ایئر لائنز پہ PIA پہ سفر نہیں کریں گے, اسی طرح آپ نے ہر جگہ پاکستان کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن فراڈ شیٹ کے میں جتنا بڑا اسکینڈل سامنے آیا ہے, اور آپ اب دیکھیں یہ جس کو نالائق اعظم کہتے ہیں, اس نے ایک ٹویٹ کر کہ بڑی ذوق و شوق سے پہلے براڈ شیٹ کو کھول رہے تھے, جب پتا چلا کہ اوپر ہی سر پہ آ گئی ہے, اپنے ہی منہ پر آ گئی ہے, تو ٹویٹ کی کہ میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ کا لینا دینا ہے, آپ کو جواب اس لیے دینا پڑے گا کیونکہ آپ اس اسکینڈل کے باوجود اس کے کرتا دھرتا کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بلا کر ان کے ساتھ میٹنگز کرتے رہے. کیا ان میٹنگز میں ڈسکس ہوتا یہ عوام کو پتا چلنا چاہیے, اور انشاءاللہ تعالی ایک دن یہ حقائق سامنے آئے. جسٹس عظمت سعید صاحب کی جہاں تک آپ نے بات کی, وہ شوکت خانم کے بورڈ کے ممبرز میں سے ہیں, تو آبویسلی جنہوں نے نواز شریف کے خلاف جو بھی سازش میں شامل رہا ہے اس کو واجد ضیاء صاحب کی طرح اور باقیوں کی طرح اس کو ریوارڈ کرنا تو ضروری ہے. تو یہ اگر ریوارڈ کرنے کے لیے کیا ہے تو جو سازش کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے, اگر آپ اسی کو اپنے خلاف تحقیقات کرے گا, کیونکہ وہ تو اس میں شامل رہے. تو میرا خیال ہے کہ عزت سے جسٹس عظمت سعید صاحب کو اس سے ریکیوز کرنا چاہیے اپنے آپ کو, اور ان کو یہ کہنا چاہیے کہ میں کیونکہ خود اس میں انوالوڈ ہوں اس لیے آپ مجھے اسپیئر کریں, ورنہ پاکستان کی عوام کے سامنے پھر کچھ اور حقائق جو کہ اس وقت شاید ہم نہیں لا سکے سامنے, پھر وہ ہمیں لانے پڑیں گے. کس طرح جسٹس عظمت صاحب نے پرسنلی اس وقت کی جو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اس کے آفیسرز کو کس طرح سے پرسنلی انہوں نے بلا کے ڈرا کے دھمکانے کی کوشش کی اور کیا کیا میسیجز دیے, پھر وہ تو قوم کے سامنے چیز لانی پڑے گی ہمیں. تو بہتر ہے اپنے آپ کو ریکیوز کریں. بلاول نے ایک پریس کانفرنس کی, انہوں نے ان ہاؤس تبدیلی کی بات کی ہے. کیا نون لیگ بھی ان ہاؤس تبدیلی کو سپورٹ کرتی ہے؟ دوسری یہ بتائیے گا کہ کراچی میں شادی ہے بختاور کی, کیا آپ کو بلائے گی اور آپ جائیں گی وہاں پر؟ انویٹیشن ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں, جہاں تک بلاول صاحب کی تجویز کی بات ہے, جو ان ہاؤس انہوں نے چینج کی بات کی ہے, میں نے بھی وہ ٹی وی پہ سنی ہے. اور اب جب تک PDM کا اجلاس نہیں ہوتا, انہوں نے کہا کہ میں PDM کی قیادت کو مناؤں گا, تو میں تو ان کو کہتی ہوں ان کے پاس اگر نمبرز ہیں تو ضرور شو کریں, لیکن ہمیں انتظار کرنا چاہیے PDM کے اگلے سربراہی اجلاس کا, جس میں بلاول صاحب یہ اپنی تجویز رکھیں گے جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ رکھیں گے. تو جب وہ یہ تجویز PDM کے سامنے رکھیں گے تو یہ ڈسکس بھی ہوگی وہاں پر جو PDM کی ساری جماعتیں ڈیسائیڈ کریں گی وہ آپ سب کے سامنے آ جائے گا. شادی کا انویٹیشن آیا؟ شادی, میری نیک خواہشات, میری دعائیں بختاور بھٹو زرداری کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اس نئے سفر میں خوشیاں دے, ان کو آباد رکھے, خوش رکھے, میری ان کے لیے نیک تمنا. میڈم آخری سوال, یہ 2021 جو ہے یہ الیکشن ایئر ہے, اور جو بیوروکریسی اس وقت نون لیگ کو انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے, کیا آپ چاہیں گے کہ ان کے خلاف ایک کمیشن بنے کہ یہ جو لوگ سرکاری افسران یوز ہو رہے ہیں آپ لوگوں کے کینڈیڈیٹس کے خلاف کارروائی ہو؟ دیکھیں, جہاں تک بیوروکریسی کا تعلق ہے یا پولیس آفیسرز کا تعلق ہے یا انتظامیہ کا تعلق ہے, وہ جتنے وہ تنگ آئے ہوئے ہیں اس نالائق اور نااہل حکومت سے, وہ شاید ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو تاریخی نااہلی اور نالائکی ہے اس کا نشانہ, اس کا جو برنٹ ہے وہ ان کو بیئر کرنا پڑتا ہے, اور جو پسند ناپسند کی بنیاد پر یہاں پر آج کل شہباز شریف صاحب جب ہوا کرتے تھے تو میرٹ ہوا کرتا تھا, پولیس آفیسرز کی, انتظامیہ کی جو اپائنٹمنٹس ہیں وہ میرٹ پہ ہوا کرتی تھیں. لیکن یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر ضرورت ہوتی ہے, جیسے جب کھوکھر برادران کے اوپر اٹیک کرنا تھا
कौन सा जो पुलिस ऑफिसर है या कौन सा जो औजार है वो बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, तो वो ये समझते हैं, ब्यूरोक्रेसी भी ये समझती है, पुलिस ऑफिसर्स भी ये समझते हैं कि इंतकाम के लिए वो इस्तेमाल हो रहे हैं और ये ब्रूट जो है वो उनको बेयर करना पड़ेगा। ऑब्वियसली लोग चेहरे देख लेते हैं, पहचान लेते हैं, मार्क कर लेते हैं, तो इस हुकूमत की जो ज्यादतियां हैं, जो इंतकाम है, उसका जो ऑब्वियसली उसका जो जिम्मेदार है इनको ठहराया जाएगा। तो ये इनको भी जरा सोच समझ के गवर्नमेंट के अहकामात को मानना चाहिए, क्योंकि ये इल्जाम सारा इनके ऊपर भी आएगा। लेकिन खुद भी बहुत तंग है, मैं ये जानती हूँ। भाई का प्लॉट, जो बहनोई का प्लॉट हो, कुछ हो, कहीं पर जलसा हो, कहीं पर बाई इलेक्शन हो, पूरी इंतजामिया वहाँ की तब्दील हो जाती है। तो ये अपॉइंटमेंट्स होती है ना प्रोफेशनल ऑफिसर्स की, इन बातों पर जब की जाएंगी तो ऑब्वियसली उनका करियर अफेक्ट होता है, और सबसे ज्यादा आई थिंक अफेक्टेड जो है वो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी है। पीडीएम के जो आने वाला इजलास, मेरी हमदर्दियां ब्यूरोक्रेसी के साथ। 4 फरवरी को जो पीडीएम का इजलास हो रहा है उसमें कितने नुकात डिस्कस किए जाएंगे, क्योंकि सारा प्रोसेस हो गया, इस्तीफे और लॉन्ग मार्च रह गए, और तनकीद भी की जा रही है कि शायद इस पे इत्तेफाक और कंसेंसस नहीं हो पा रहा। किस चीज पर? इस्तीफों पे और लॉन्ग मार्च पे, इस पे क्या? लॉन्ग मार्च पे तो कंसेंसस है, इस्तीफों के ऊपर की टाइमिंग के ऊपर, और ऑब्वियसली अब पीपल्स पार्टी ने एक बात की है, इन हाउस जो चेंज है उसकी उन्होंने एक बात की है, तो उसको डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली लॉन्ग मार्च भी डिस्कस होगा, इस्तीफे भी डिस्कस होंगे, उसका टाइमिंग भी डिस्कस होगा, और साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तजवीज़ भी डिस्कस होगी। मैडम आपसे बस ये सवाल कि आप हुकूमत को 5 साल पूरे करने देंगे या ये 2021 जो है ये इलेक्शन ईयर है? हम अगर हुकूमत को 5 साल पूरे करने दें भी तो ये हुकूमत अपनी हरकतों से 5 साल पूरे नहीं कर सकती। जो रोज आप महंगाई का तूफान देख रहे हैं, जिस तरह से लोग क्रिपल होके रह गए हैं, जिस तरह से रोज पेट्रोल, डीजल, गैस महंगी हो रही है और उसकी शॉर्टेज हो रही है, और जिस तरह से रोजमर्रा के इस्तेमाल करने की जो चीजें हैं वो आवाम की कुव्वत खरीद खत्म होके रह गई है, और जिस तरह से गवर्नेंस का हाल है, जिस तरह से पाकिस्तान की पूरी दुनिया में रुसवाई हो रही है इस नालायकी और नाअहली से, तो ये हुकूमत खुद ही अपने खात्मे के लिए काफी है। अगर हम इसको 5 साल देना भी चाहें तो ये अपने आप को 5 साल देने को तैयार नहीं है। मैडम, पंजाब में तब्दीली के हवाले से आपके पास काफी नंबर ऑफ नेम्स हैं पंजाब असेंबली के अंदर, तो उसमें कोशिश अगर चौधरी बरादरान आपको अप्रोच करें तो इन हाउस तब्दीली के लिए कोशिश कर सकती है उनकी जानिब से? और एक चीज और, वो कहते हैं चौधरी साहब का भी केस हाई कोर्ट ने टेकअप कर लिया, पता नहीं वो आ रहे हैं कॉन्सेंट से, मतलब कल की जो बातें हैं। नून लीग पंजाब में कोशिश क्यों नहीं करती इन हाउस तब्दीली के हवाले से? नून लीग ये समझती है कि जो इन्होंने अपनी नाकामी और नाअहली से हाल कर दिया है हर चीज का, तो इतनी आसानी से नून लीग इनको जाने नहीं देगी। ये अपनी जिम्मेदारी से, अपनी नालायकी, नाअहली की जिम्मेदारी और इसका बोझ इनको खुद उठाना पड़ेगा। नून लीग इनको बिल्कुल राह फरार नहीं देगी, शहीद बनने का मौका नहीं देगी, ताकि कल को ये बाहर आके ये ना कह सके कि हमने क्या काम करना था जी पंजाब में, तो अचानक हमारी हुकूमत गिरा दी गई और हमें हमारे खिलाफ साजिश हो गई और हम ये कर नहीं सके। इनको इनका जो स्याह कारकर्दगी, उसका बोझ भी इन्हीं को उठा के अवाम में जाना पड़ेगा। नून लीग इनको राह फरार इख्तियार नहीं करने मैडम, ये तो नया बयानिया है जो पीडीएम का बयानिया था, जो लॉन्ग मार्च इस्तीफे आप कह रहे हैं। नहीं, मैं इन हाउस चेंज की बात कर रही हूँ, मैं इन हाउस चेंज की बात कर रही हूँ पंजाब में जब इन्होंने बात की है। अब इसके ऊपर शरारत न करना। F9 पार्क गिरवी रखवाने का मामला सामने आया, तो कल वफाकी कबीना के इजलास में तजवीज दी गई कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस को या ऐवान सदर है उसको गिरवी रखवा दिया जाता। नहीं, वज़ीर-ए-आज़म हाउस या ऐवान सदर तो कौम की अमानतें है ना, कौम की वो मलकियत है, उसको क्यों रखें गिरवी? अगर गिरवी रखना है तो बन्नी गाला को गिरवी रख लें। की जाती रिहाइश गाहों को जिनको इन्होंने जालसाजी से रेगुलराइज कराया है और जिसका सबूत ये आज तक नहीं दे सके कि वो किस पैसे से खरीदी हैं, तो उनको गिरवी रख लें। कौम की अमानत को गिरवी क्यों रखना? थैंक यू। मैं अब चलूं जी? थैंक यू जी। थैंक यू मैम। मेहरबानी।